নরেন্দ্র মোদীজি মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন। তাকে বরণ করবেন সম্মানীয় শ্রী রাজ্য সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয় এবং সাথে মাননীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মহোদয়, হিন্দু মহাসভার মালদা জেলার সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সহকর্মী শিবেন্দ্র শেখর রায়ের প্রতিকৃতি দিয়ে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন মাননীয় মোদীজিকে। মোদীজি স্বাগতম। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। মালা দিয়ে স্বাগত জানাবেন। মাননীয় শ্রমিকদা সম্মানীয় শ্রী রাজ্য সভাপতি মোদীজিকে রজনীগন্ধার মালা দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। এরপরে মোদীজিকে স্বাগত জানাবেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা লড়াকু নেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। গম্ভীরার মুখোশ দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। গম্ভীরার মুখোশ দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে স্বাগত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। এরপরে স্বাগত জানাবেন আমাদের সাংসদ শ্রী খগেন মুর্মু মহাশয় এবং কার্তিক পাল মহাশয়। সিধু কানের মূর্তি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন সম্মানীয় সাংসদ খগেন মুর্মু মহাশয় এবং কার্তিক পাল মহাশয়। প্রাক্তন জেলা সভাপতিগণ এবং বর্তমান জেলা সভাপতিগণ স্বাগত জানাবেন মাননীয় মোদীজিকে। মা দুর্গার মূর্তি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন মালদা বিভাগের 4 জেলা সভাপতিগণ এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতিগণ মোদীজিকে স্বাগত জানাচ্ছেন মা দুর্গার মূর্তি দিয়ে। সমস্ত বিধায়কগণ স্বাগত জানাচ্ছেন রূপ সনাতনের মূর্তি দিয়ে মোদীজিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এখন স্বাগত ভাষণ রাখবেন সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লড়াকু নেতা বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। তাকে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। আজকে আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, 140 কোটি ভারতবাসীর নয়নের মণি, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধাস্পদ প্রণম্য মান্যবর শ্রীযুত নরেন্দ্র মোদীজি। তাকে আমি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত বিধায়ক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। মঞ্চে আমাদের ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি, রাজ্য সভাপতি সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য, মান্যবর 2 কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর এবং বিহার সরকারের মান্যবর মন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডেজি সহ সম্মানিত মঞ্চ। আমরা প্রত্যেক দিনই বলি, কিছুদিন আগেও আমি গাজলে চাঁচলে সভা করেছি। আজকে আমরা আমাদের নেতার কথা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতার কথা শুনব।
মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে আজ মালদা শুধুমাত্র পরিবর্তনের সংকল্প বা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আসেননি, দু হাত ভরে এই বাংলাকে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নের ডালি নিয়ে এসেছেন। কিছুদিন আগে এই জেলারই মোথাবাড়ির বিধায়ক রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন না করলে আবাসের বাড়ি পাওয়া যাবে না। আপনারা শুনে রাখুন, এই রাজ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 7 কোটি বাংলার জনগণকে প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 40 লক্ষ আবাসের বাড়ি দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 14 লক্ষ শৌচালয় স্বচ্ছ ভারতে দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকার 1,29 লক্ষ উজালা 1 উজালা 2 মা বোন দিদিদের গ্যাসের কানেকশন দিয়েছেন। এমনকি 50 লক্ষ কৃষক পরিবার পিএম কিষাণ সম্মান নিধি পাচ্ছেন। কাউকে ফোন করতে হয়নি। পরিবর্তন আনুন, কাউকে ফোন করতে হবে না। বাংলার মানুষ, বাংলার গণদেবতা, বাংলার জনতা জনার্দনের যা প্রয়োজন নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে রাষ্ট্রবাদী সরকার 20টা রাজ্যের মতো এখানেও পৌঁছে দেবে। কথা না বাড়িয়ে এই মালদা জেলা সীমান্তবর্তী জেলা, যারা দেশভাগের বিভীষিকা নিয়ে নিজেদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন, কংগ্রেস তাদেরকে কিচ্ছু দেয়নি। স্বাধীনতার এতদিন পরে 2019-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে হিন্দু শরণার্থীদের তিনি নাগরিকত্ব দিয়েছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা আরেকবার প্রণাম জানাই। শুধু তাই নয়, 2024 সালে আগস্ট মাসের পরে রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে অনেক হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে ভারতে এসেছিলেন, আর পশ্চিম বাংলার মমতা ব্যানার্জির পুলিশ তাদের ধরে ধরে জেলে পুরছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকার 1 সেপ্টেম্বর 2025 নোটিফিকেশন দিয়ে বলেছে কোন হিন্দু শরণার্থীর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না, হাত দিতে পারবে না, হাত দিতে পারবে না। তাই নরেন্দ্র মোদীজিকে বলবো, জনগণকে বলবো, হিন্দু শরণার্থীদের বলবো, হিদ মাজারে রাখবো, তোমায় ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর যে পাবো না। সবাই ভালো থাকবেন। জয় জয় শ্রীরাম। এখন আপনাদের সামনে সম্বোধন করবেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সম্মানীয় সভাপতি তথা সাংসদ শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়। তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চে উপস্থিত পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, উপস্থিত যিনি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের জীবনের মধ্যে গতি নিয়ে আসবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যিনি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর পূর্ব ভারতের সংযোগ স্থাপন করতে কিংবা কলকাতার গঙ্গার নিচ দিয়ে মানুষকে মেট্রো রেলের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন রেল মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি, আমাদের 2 কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, আমাদের সহকর্মী বন্ধুগণ, সুধী আমাদের কর্মীবৃন্দ, মা ও বোনেরা,
এক বিশেষ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের আজকে এই সভায় এসে দাঁড়িয়েছি। আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনবার জন্য। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে শুধু মানুষের কাছে একটি বার্তা দিতে চাই যে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ, অবহেলিত উত্তরবঙ্গ, পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের স্লোগান দিয়ে যারা মালদা থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এর পাহাড় পর্যন্ত মানুষকে প্রতারিত করেছেন, তার জবাব দিন। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যা তৈরি করেছিলেন, উত্তরকন্যার জন্য বাজেটের যে ছিটে ফোটা বরাদ্দ হয় তার 41% বেশি টাকা কোনো দিন উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য খরচা হয়নি। আজকে পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গ, বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের পাশে যিনি দাঁড়াতে চাইছেন, যিনি দাঁড়িয়েছেন, তার নাম নরেন্দ্র মোদী। আপনারা এগিয়ে আসুন এক নতুন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্যে। একটা সময় ছিল যখন সারা ভারতবর্ষের মানুষ কাজের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গে আসতো, আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক্সোডাস চলছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মেধা বাইরে যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শ্রমিক বাইরে যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুঁজি বাইরে চলে যাচ্ছে। এই ফ্লাইট অফ ক্যাপিটালকে আটকাতে হবে, আমাদের মেধাকে আমাদের বাংলায় রাখতে হবে, ঘরের ছেলেকে ঘরের ভাত খাওয়াতে হবে। তাই ভারী শিল্প স্থাপন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কৃষি আর শিল্পের সহাবস্থানের শুধু স্লোগান নয়, শিল্পে কৃষির অংশীদারিত্ব চাই, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন চাই, কর্মসংস্থানের সুযোগ চাই। আমরা অপেক্ষা করতে বলছি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিনিয়োগকারীকে, আমরা অপেক্ষা করতে বলছি এখানকার শিল্পপতিদের, আমরা অপেক্ষা করতে বলছি পশ্চিমবঙ্গের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। আর কয়েকটা মাসের অপেক্ষা, 26-এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন। কালের দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে আর কেউ ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমাদের মেধা আছে, আমাদের টাকা আছে, আমাদের সমুদ্র আছে, আমাদের নদী আছে, আমাদের টোপোগ্রাফিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আছে, আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতের দরজা আছে, আমাদের পাশের পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যা আছে, বিহার আছে। আমরা তাদের খনিজ সম্পদের উপরে ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারি, আর সেটা পারি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহযোগিতায়। দেখুন, কারো চান মানে আছেন, কালের দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, পশ্চিমবঙ্গের বিদায় আসন্ন। আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়ে একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আক্রমণ করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। এই আক্রমণ শুধু ইডির ওপরে আক্রমণ নয়, এই আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ, এই আক্রমণ ভারতীয় সংবিধানের উপরে আক্রমণ। একজন সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এই আক্রমণ বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ। ক্যালকাটা হাইকোর্টে বিচারপতিদের ঘরে ঢুকে তাকে ম্যানহ্যান্ডেল করা হচ্ছে, বিচারপতির বাড়িতে গিয়ে পোস্টার লাগানো হচ্ছে। রাজ্যপাল, যিনি রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি, যার নামে রাজ্য শাসন হয়, আজকে তিনি ভাষা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শুধু সোনার বাংলা স্লোগান দিলে চলবে না। আজকে যে সাইলেন্ট ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন চলেছে, বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের চক্রান্ত চলেছে, মালদার জমি ব্যবহার করে যেভাবে ঝাড়খণ্ড, বিহার, বনাঞ্চল, সীমাঞ্চলের ডেমোগ্রাফিকে বদলে দেওয়া হচ্ছে, আজকে তার বিরুদ্ধে আপনাদের আওয়াজ তুলতে হবে। এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে আমরা দেব না। এ রাজ্য কোনো ধর্মশালা নয়, এখানে জেহাদিদের জায়গা নেই, রোহিঙ্গার জায়গা নেই, ভুয়ো ভোটারের জায়গা নেই, মৃত ভোটারের কোনো জায়গা নেই। তাই আপনারা এগিয়ে আসুন। যে প্রতিশ্রুতি মহাত্মা গান্ধী দিয়েছিলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দিয়েছিলেন, নেহরুজি দিয়েছিলেন,
যে কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের সামনে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই স্বপ্নকে যিনি সাকার করেছেন তিনি নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। আজকে তার এই জনসভায় আপনারা এসেছেন, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। বন্দে মাতরম। যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা সবাই অধীর আগ্রহ বসে আছেন, আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যারা উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই মালদার পূর্ণভূমিতে যে পরিবর্তন সংকল্প সভা, এই সভায় বক্তব্য রাখছেন, সবাই হাত নেড়ে তাকে সম্বোধন জানাবেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। भारत माता की, भारत माता की। मेरी यहाँ जो लोग ऊपर चढ़े हैं उनसे प्रार्थना है, आप सब नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बहुत समझदार लोग हैं, वहां भी जरा और लोग मदद कीजिए उनको नीचे आने में। देखिए कहीं कोई नुकसान हो गया, आपको चोट पहुंच गई, मुझे बहुत पीड़ा होगी दोस्तों। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पाते होंगे, लेकिन मेरी आवाज आप जरूर सुन सकेंगे, मेरे दिल की धड़कन आप तक जरूर पहुंचेगी। आप प्लीज नीचे आइए। देखिए मुझे दुख होगा, आपको कुछ भी होगा, मुझे बहुत दुख होगा। प्लीज नीचे आइए आप लोग। देखिए वहां जो लोग हैं जरा मदद करें उनको, जरा मेहनत करके। देखिए ये लोग सब समझदार हैं, वो आ गए, आप लोग नहीं आए, आइए जल्दी। शाबाश, बहुत अच्छे समझदार हो नौजवान। मैं आपका प्यार मेरे लिए सर आंखों पर है, लेकिन मेरे लिए आपकी जिंदगी उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। प्लीज आप नीचे आइए, जल्दी 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 करो बेटे। शाबाश, देखो गिर जाओगे भैया। इनको मदद कीजिए भाई, ये बच्चा। हाँ शाबाश। भारत माता की, भारत माता की जय। मां मनस्कामना, जय मां हेंटाकाली। মালদার এই পবিত্র ভূমিকে আমার আন্তরিক প্রণাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? भाइयों बहनों, आज बड़ा मन प्रसन्न हो गया। ये छोटे छोटे बालक पूरी रामायण के स्मृति दिलाने वाले अत्यंत उत्तम वेशभूषा के साथ, कोई हनुमान जी, कोई सीता माता, कोई राम लक्ष्मण, वाह क्या अद्भुत दृश्य बनाया आप लोगों ने। इन बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गुंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है। मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। मैं सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से
मालदा की पहचान बची रही। आज भी मालदा अपने आम सत्तों, रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है। और मैं यहां इस विशाल जनसागर में, और मैं देख रहा हूं जितने लोग पंडाल में पहुंच पाए हैं, इससे डबल लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों। बंगाल ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है। साथियों, यहां के नौजवानों के उत्साह में, माताओं बहनों के जोश में मालदा की इस पहचान को और मजबूत बनाने का संकल्प देख रहा है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। साथियों, आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है। और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है। और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। आपको मेरे साथ एक संकल्प लेना है। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? सबके सब बताइए, मेरे साथ संकल्प लेंगे? मैं जो कहूंगा आपको उसको दोहराना है। मैं कहूंगा,
पाल्टानो दोरकार। आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, बीजेपी ने देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है। आज पूरे देश में जनता इसे अपना आशीर्वाद दे रही है। अब आपने देखा होगा टीवी पर, कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं। इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। खास तौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। कुछ दिन पहले ही केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी के मेयर बने हैं। यानी जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। और जहां जहां सालों साल तक बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, पश्चिम बंगाल का तेज विकास भाजपा की केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। अभी कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बंगाल को करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें मिली है। इसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मेड इन इंडिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज रफ्तार है और हम सभी के लिए खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
जिस राज्य से शुरू हो रही है वो हमारा बंगाल है। इस ट्रेन का एक स्टेशन मालदा भी है। मैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए बंगाल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत के साथ ही आज बंगाल को 4 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। इससे पूरे उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होने वाली है। इससे यहां के किसानों, यहां के नौजवानों को लाभ होगा, यहां टूरिज्म को बल मिलेगा। साथियों, देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बंगाल के हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो। यहां की लाखों बहनों को नल से जल मिले। जो असली हकदार है उन्हें मुफ्त राशन मिले। जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की है, मैं चाहता हूं उनका पूरा लाभ आपको मिले। आप उसके हकदार हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो। लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार
ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए। आपके घर का बिजली बिल भी 0 हो जाए, लेकिन गरीब का भला करने वाले ऐसे सारे कामों को यहां की टीएमसी निर्मम सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। आप मुझे बताइए, ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां के हर नागरिक को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर परिवार को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? उनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा जब यहां रुकावट डालने वाली टीएमसी सरकार नहीं, उन्नयन वाली बीजेपी सरकार होगी। भाइयों और बहनों, मैं आज मालदा में आपसे आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। जो आप महसूस करते रहे हैं, मैं उसके साथ जुड़ने के लिए आया हूं। यहां न फैक्ट्रियां लग रही हैं, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद से नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। यहां रेशम किसानों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहां के आम किसान बेहाल है। आम किसान बताते हैं कि इस बार उनको अपनी लागत तक वापस नहीं मिल पाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहां आम से जुड़े उद्योग बढ़ाने के लिए ठीक से काम नहीं किया। यहां आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। और तो और जो आपके हक के पैसे थे वो भी आपको नहीं दिए। साथियों, मालदा, उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। गंगा जी
और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहां के लाखों लोग टीएमसी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नदियों के किनारे पक्की सुरक्षा दीवार लगाई जाए। लेकिन हर बार जब बाढ़ आती है तबाही लाती है। तो टीएमसी वाले आपको बाढ़ में बेहाल रहने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है वो मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। और यहां गंगा जी, महानंदा और फुलहर पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहां भाजपा सरकार बनाइए। हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। जो इंग्लिश बाजार में दिखता था, कालिया चक में दिखता था, साथियों यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अभी केंद्र की बीजेपी सरकार भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। यहां सरकार बनने के बाद हम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं और बढ़ाएंगे।
हम यहां के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। साथियों, रेशम और जूट के धागे ये हमारी विरासत का हिस्सा है। रेशम किसानों के विकास के लिए केंद्र की भाजपा सरकार करोड़ों रुपयों की योजना चला रही है। जूट किसानों को, जूट इंडस्ट्री को भी ताकत मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। 2014 से पहले जब टीएमसी वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे, दिल्ली की वो सरकार के वो हिस्सेदार थे, तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये था। आज ये 5,500 रुपये से भी अधिक है, यानी डबल हो चुका है। भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जूट किसानों को 400 करोड़ रुपए ही मिले थे। जब ये टीएमसी वाले दिल्ली सरकार में बैठे थे ना, तब की मैं बात करता हूं। जबकि बीते 11 वर्षों में जूट किसानों को भाजपा सरकार ने 1300 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। यानी भाजपा सरकार ने जूट किसानों को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। साथियों, यहां आप भाजपा सरकार बनाइए, जूट किसानों और जूट उद्योग दोनों को इससे भी कहीं अधिक फायदा होगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों,
टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ, नामशूद्र, शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। साथियों, बंगाल में परिवर्तन लाने की यहां के युवा साथियों और यहां की माताओं बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हमने कल ही देखा है, एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहां शासन प्रशासन में निर्ममता ऐसी है कि बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों को बात बात पर कोर्ट जाना पड़ता है। साथियों, इस स्थिति को बदलना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा?
ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है जो इन सारे कामों को पूरा करेगी। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। और साथियों, मैं आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहूंगा, टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। साथियों, ये हम सबके लिए गौरव का समय है। इसी समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। हमें वंदे मातरम की स्पिरिट को जगाना है। ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की प्रेरणा से बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। यहां बहुत सारे साथी बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। मैं जरा एसपीजी के लोगों से कहूंगा, ये सब कलेक्ट कर लीजिए और जिसने अपने चित्र के पीछे अपना नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा, मैं उनको जरूर धन्यवाद पत्र भेजूंगा। तो जरा एसपीजी के लोग इन सारी चीजों को ले लीजिए। जो मेहनत करके चित्र बना करके लाए हैं, मैं आपकी इस मेहनत का सम्मान करता हूं। मैं आपकी कला को प्रणाम करता हूं। जो भी है सब कलेक्ट कर लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये माता जी देखिए, एक बहन ले आई है, ले लो भाई। देखिए, उनको निराश मत कीजिए। फोटोग्राफर ले लो उसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।